So good afternoon. And पहले मैं शुरू करता हूँ. We've heard a lot about ambition, scale, and global opportunities so far in last 4 or 5 hours that we have spent together. लेकिन अब सवाल ये है कि एक इंडियन ब्रांड सच में ग्लोबल कैसे बनता है, ये सब रियलाइज कैसे होगा. So we've got good experts here who obviously will help us with the realization of this dream that we've been speaking about for last 4 or 5 hours. So today's panel has it all: platform pros, logistic expert, compliance champions, and digital growth gurus. तो चलिए एक एक करके I'll start shooting questions to them and hear their views on their expert area. So first up, I'll go to Piyush Garg from Amazon. दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है and marketplace. Piyush has helped thousands of Indian sellers reach global customers. If you've even thought of selling abroad, Amazon ने तो कहीं उस जर्नी में रोल ज़रूर प्ले किया ही होगा. Correct. Then we have Percy. You guys can keep raising your hand as I kind of introduce. His country manager at Amex, India, logistics or cross-border fulfillment में Percy is a veteran. He'll help us understand how to ship smart, fast भी हो और cost-effective भी हो. Right. Then we have Mr. Sumed Sachdev, founder of Lucria Consultant, your guide for all things legal and compliant, trademarks, IP, VAT, and tax setups. अगर global base strong बनाना है, तो Sumed's advice is going to be gold for us. And finally, we've got Mr. Kiran Patil, CEO and of Grovisto, the brand behind many successful brands, from visibility to conversions. Kiran's team generally helps sellers win on Amazon and beyond. So we'll jump in now and शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ से everything starts, which is the marketplace, the platform. So Piyush, Amazon Global Selling ने इतने Indian businesses को global scale तक ले जाने में help किया है. क्या कुछ concrete examples you can share with us or data points जिससे समझा जा सके कि Indian brands को global footprint कैसे बनाना है? Sure. Thanks, Nilesh. Thanks for the opportunity. Hi, everyone. Good afternoon. So I think, I mean, पिछले panel में भी, like the fireside chat में भी, I think he mentioned a lot about Amazon. So I think Amazon being one of the biggest platforms, so it does come across as a natural way to get into selling as a brand or as a reseller. तो just for context, हम लोग अगर Amazon Global Selling की बात करते हैं, which is हमारा जो platform है, इसके through हम लोग Indian sellers को global जाने में help करते हैं. And the biggest, I mean, number that I want to upfront put about is कि 2024 के end तक हम लोग ने cumulatively $13 billion का export enable किया है India से. Nice. That's annual. No, I mean cumulative. This is cumulative over the years. And अभी जो हमारा 2030 का goal है, so that's the commitment that has been also shared, is $80 billion. Wow. So I think that's what Amazon we vouch for. और अभी तक अगर number of sellers की बात की जाए तो around 1,20,000 से ज़्यादा sellers Amazon Global Selling try कर चुके हैं. And they have tried to sell, and they are selling across 18 marketplaces. जो marketplaces like platforms हैं, and then through those marketplaces across 90 plus countries, customers buy कर सकते हैं products, right? And then from a reach perspective, 25 states, 200 plus cities, plus all union territories. तो हर state से चाहे जितना भी remote area हो, तो सब जगह से people have been able to go global, and this is where we feel like a platform like Amazon, along with the technology and other partners. So we have a service provider network also, जिसपे कि 70 plus service providers हैं who enable sellers in different areas of need, including compliance है, logistics है, payments है.
तो अकाउंट मैनेजमेंट है, तो हर चीज़ के लिए देर इज़ एन इकोसिस्टम विच हेल्प सेलर्स टू गो ग्लोबल. Right. And just a follow-up question on that. So the conversations previously जो सारे थे, it was about they reaching out to Amazon Marketplace. What is Amazon Marketplace doing to reach out to them? How are they enabling them to get onboarded faster? Right. So I think one thing, I think what Tarun, right? Yeah. So he talked about Amazon versus brands, but हमारा ये view है कि Amazon पे भी you need to have a strong brand presence. So just to answer to that, but then in terms of how is Amazon helping get onboarded? So there are two parts. One is एक तो हम लोग आई थिंक इन अप्रैल हम लोग भी जयपुर में इवेंट किया था, एक्सपोर्ट कनेक्ट करके हमारा इवेंट होता है, एंड देन दिस टाइम वी डिड रीजनल इवेंट्स, कोयम्बटूर, जयपुर, दिल्ली एंड अभी अहमदाबाद में हमारा लास्ट इवेंट हुआ. सो उसके थ्रू वी ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स है क्या, बिकॉज यूजुअली इंडियन एक्सपोर्टर्स या इंडियन बिजनेसेस आर मोर गियर टूवर्ड्स डूइंग B2B एक्सपोर्ट्स, बट हम लोग उसके इवेंट्स के थ्रू एक तो अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, एंड देन उसके अलावा ऑनबोर्डिंग से लेके आपका लॉजिस्टिक्स, पेमेंट्स, वो कैसे सीमलेस हो, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, राइट. सो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप हमारे पास एक 90 डेज़ का प्रोग्राम है जिसको हम परफेक्ट लॉन्च बोलते हैं. देन आपके लॉजिस्टिक्स मैनेज करने के लिए वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड सेंड, जिसमें कि आपको हमारे मतलब नेगोशिएटेड रेट्स हैं विद सम ऑफ द पार्टनर्स, एंड देन आपको एंड टू एंड ट्रैकिंग और वो सब मिलता है कि आपका वहाँ पे फुलफिलमेंट सेंटर में डिलीवरी तक आपको पूरा विजिबिलिटी मिले. सो सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ दीज टूल्स, एंड देन अदर पार्ट इज़ कि हम बात कर रहे थे कि क्या प्रोडक्ट बेचना चाहिए, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी बिजनेसमैन, कि क्या प्रोडक्ट बिकेगा. तो उसके लिए भी देयर आर टूल्स जो कि आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर है, या फिर अगर आपके पास इंडिया में लिस्टिंग है अमेजोन का, तो आपको बताएगा कि कौन से और मार्केट प्लेसेस में आपके प्रोडक्ट का कितना डिमांड है. सो दोज टूल्स, वी बिलीव टेक्नोलॉजी हैज़ अ वेरी पिवटल रोल टू डेमोक्रेटाइज दिस, एंड दैट्स व्हाई वी हैव बीन एबल टू गेट सो मेनी पीपल ट्राई अमेजोन ग्लोबल सेलिंग. That's good. That's giving good data insights, I think, sellers. Okay, I'll come to Percy now. So let's talk about delivery. एक बार listing तो हो गई, fulfillment becomes the next big challenge. So speed भी चाहिए, cost भी control में रहना चाहिए. How do brands actually get about logistics? What are the parameters? What are the factors before choosing a partner? Khambagadi, everybody. That's the only Rajasthani I know, so excuse me. मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने के लिए. आज सुबह जब हम इंदुनाथ से सुन रहे थे, वो बता रहे थे इंडिया का एक्सपोर्ट अगर आप मार्केट देखोगे, 45% ऑफ आवर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स कम फ्रॉम द SMEs. एक यूनिक पार्ट है इंडिया को लेके. अगर आप इंडिया को चाइना से कंपेयर करोगे, चाइना इज ऑल अबाउट स्केल, लार्ज एंटरप्राइजेस, बिग ब्रांड्स. इंडिया इज मेनली ड्रिवन बाय पीपल लाइक अस, ओके, द SMEs who drive it. And for the first time, seller who wants to go cross border, who's sold in India, he may have a store, he is sold on Amazon India or Flipkart or somewhere, and now he wants to go cross border. His first important challenge is going to be having the right logistics partner with him. India में लाखों logistic company है. Every street you go, you would see a courier sign over there or a logistics sign over there. किसको shipment दे? So the right logistics partner selection एक पहली important चीज होती है. Now logistics selection करते समय I personally believe there are 3 important parameters to be kept in mind. ये 3 parameters है cost, speed और reliability. और ये 3 factors का एक trade off होता है to select the right logistics partner. तो कोई नीलेश एक fixed formula नहीं है जिससे आप पता करोगे कि ये मेरा पार्टनर होगा. आपने ये 3 parameters पे
कंसिडर करके आपका लॉजिस्टिक्स पार्टनर सिलेक्ट करना होगा. नाउ ये 3 पैरामीटर काम किस प्रकार करती है? पहले 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्पीड और कॉस्ट. I would love to deliver it in 48 hours in USA, which is our biggest market in India today. But that's the most premium product. Okay? So you have to decide what is the expectation of your customer, which is the market you are selling to, what's your product, and what is the expectation. And customers and markets will come with different products and expectation. So US JC market में on certain products like you talked about ghee, you want it in 3 to 4 days delivered over there. But in certain products where your ticket size is lower or your products can have a longer shelf life and the customer is ready to wait, you may decide to deliver it in 12 to 15 days. Okay, so the first choice when you are doing of your logistics partner, आपको देखना है आपका logistic partner एक ही product बेचता है या he is selling you a range which would be 3 to 4 days, 12 to 15 days and something in between also, because not everybody would be ready to wait for 12 to 15 days. Not everybody would want it in 3 to 4 days because he can't afford it. He wants something in between. जैसे हमें चाय पीनी है, मैं ठेले पे जाके भी पी लूंगा, मैं यहाँ आके भी पी लूंगा, बट मुझे रास्ते पे नहीं पीनी है और मेरे को इतना महंगा नहीं चाहिए. I will go to a good restaurant where I'll get a tea for 50, 60, 70 bucks. So first thing is, does your logistics partner have an array of products where you can mix and match based on your customer demands on the speed and the cost? The second important thing comes in is cost and reliability. As I said, we have hundreds of thousands of logistics company. Okay. You may get something cheap. Is it reliable? Is he going to be able to consistently deliver to you or for you on a regular basis? If he is saying मैं 5 दिन में deliver कर दूंगा या 7 दिन में deliver कर दूंगा, what percentage of the shipments will he reliably deliver in the 7 to 9 days time? Does he have a network which he controls, or is he a tech platform who's working with multiple partners across the world which he does not directly control? Is the second factor you have to look at, because if that reliability is not there, you may get the cost, you may get the experience today, but the reliability factor during the critical time, like the perfect time just now, we have seen the issue which unfortunately happened in Ahmedabad with Air India. And today Air India has cancelled 15 to 20% of its long range flights. Majority of them were into USA. Correct. Now everybody who was flying on Air India and was dependent only on Air India doesn't have something to fall back upon. Correct. Whilst if you're working with a reliable partner, they will have multiple options, including going via Dubai or hub of theirs, or going via the London hub of theirs. So reliability plays the second important role. The third important role is now between the speed and reliability part of it. Again, very important. Speed is important, but the reliability of how often will you deliver as per that commitment of yours is going to be important. तो ये 3 चीजें देख के you have to decide who would be your logistics partner. Like Anshuman said, you have to build a brand. If you have to build a brand, you have to look at experience. Correct. And you have to look at consistency. And if you can build this into your selection process, the chances of growing faster and growing your brand is much stronger. I hope I have been able to answer. Good answer, and I think should give a lot of insights to people. Sumit, turning to you, I mean, product launch से पहले एक और बड़ा सवाल होता है कि ब्रांड की आइडेंटिटी क्या है, एंड कितना ज़रूरी है ट्रेडमार्क्स, आईपी, ब्रांडिंग, and how much investment should be put upfront in creating all of this? What's your thought process?
सो एक छोटा सा मेट्रिक है, ग्लोबल इंडिया टू ग्लोबल सेलिंग 1,20,000 के आसपास आपने मर्चेंट्स बताए, उसमें से जितने भी एक्टिव हैं हमने ये देखा है कि लेस दैन 10% लोग एट द टाइम ऑफ लॉन्च प्रोटेक्टेड होते हैं या रजिस्टर्ड होते हैं फॉर देयर ट्रेडमार्क्स, बट कुछ टाइम बाद में वो ज़रूरत महसूस होती है ब्रांड स्टोर बनाना है या कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है मेरे इमेजेस या प्रोडक्ट लिस्टिंग चली जा रही है हाथ से, तो वो सब्सिक्वेंट होता है, वो नुकसान होने के बाद में दर्द महसूस होता है, तो लोग फिर ट्रेडमार्क की तरफ जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो एब्सोल्युटली मैंडेटरी हैं, ट्रेडमार्क इज़ नॉट एब्सोल्युटली मैंडेटरी, पर कुछ चीज़ें जिनके बगैर काम कर ही नहीं सकते, जैसे टैक्स कंप्लायंस हो गया या कस्टम्स कंप्लायंस या प्रोडक्ट कंप्लायंस आपने नाम लिया। अगर मैं टैक्स कंप्लायंस नहीं करूंगा तो पर्सी को शिपमेंट दूंगा तो पर्सी कस्टम पे ही रोक देगा, वो बोलेगा आगे नहीं जा सकता। या अगर अमेजोन से पीयूष ही मेरे को बोल देगा कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि VAT नंबर नहीं डाला। अगर प्रोडक्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो अगेन पर्सी भी रोक देंगे मेरे को, अगेन पीयूष भी रोक देंगे, वो सेल नहीं करने देंगे, ये शिप नहीं करने देंगे। सो टैक्स और कस्टम्स कंप्लायंस एंड इनफैक्ट इवन प्रोडक्ट कंप्लायंस, इसके बगैर काम नहीं हो सकता। ट्रेडमार्क ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हो सकता है, पर जब हाथ जल जाता है तो आदमी उसके बाद में मरम पट्टी करने के लिए आ जाता है कि यार नुकसान हो गया, अब आगे के लिए बचवा दो मेरे को। So good answer. I mean, I hope this helps because not you just don't want to sell, you want to retain your identity, create your identity, right? And make it a sustainable, scalable business. किरण जी आपकी तरफ आ रहा हूँ. So listing हो गई, compliance is sorted, Sumedh has got you in good shape. अब आती है कि ब्रांड की विजिबिलिटी कैसे बनाएं. अंशुमन was saying इतने सारे सेलर्स हैं और आपका मार्केट शेयर कंटिन्यूसली थ्रेटन रहता है. So how do you discover, how do you make your product discoverable? How do you make sure it's unique, stands out and actually sells? So what are your some of the suggestions, insights? तो मुझे याद है 2016 की एक कहानी बताता हूँ मैं. Okay. देयर इज़ एक ब्रांड है कैलिफोर्निया डिज़ाइन डेन जो इंडिया से अमेज़ॉन US पे लार्जेस्ट सेलर है. तो जब फाउंडर्स है कैलिफोर्निया डिज़ाइन डेन के, वो ऑनलाइन शुरू करना चाहते थे तो मुझसे कनेक्ट हुए थे थ्रू अ पर्सनल कनेक्ट ऑफ बोथ ऑफ अस. तो मैंने उन्हें बोला कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं बेच रहे, ऑफलाइन लेकिन बहुत सप्लाई कर रहे हैं, आपको US में क्या सामान बिकता है, कैसे बिकता है, वो लोग ड्रॉप शिपिंग भी करते थे तब. तो मैंने बोला बड़ा ही सिंपल है, आप अपना लेबल लगा लो, अमेज़ॉन पे लिस्ट कर दो, ऑर्डर्स आ जाएंगे. तो ऑफ कोर्स कहने के लिए वो बड़ा इजी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप, और आज कैलिफोर्निया डिज़ाइन है आई थिंक 60 मिलियन का रेवेन्यू है. तो कहने के लिए वो इजी होता है, बट टेक्निकली देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमें करनी चाहिए. पहला है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसकी लिस्टिंग्स अच्छे से इम्प्रूव करनी चाहिए. उसमें अमेज़ॉन ब्रांड एनालिटिक्स से आप बहुत सारे कीवर्ड्स जो लोग सर्च कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, केवल अमेज़ॉन इंडिया नहीं, अमेज़ॉन US और जर्मनी, फ्रांस, मल्टीपल कंट्रीज़ के आप पता कर सकते हो अगर आपके पास उस कंट्री में ब्रांड रजिस्ट्री है. तो आपको वो पता चलता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं. उन कीवर्ड्स को टाइटल में डालिए, डिस्क्रिप्शन में डालिए, बुलेट पॉइंट्स में डालिए, बैक एंड सर्च टर्म्स में डालिए. तो आपकी लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए. इमेजेस बहुत अच्छी होनी चाहिए. हम लोग इमेजेस 1 या 2 इमेज डाल के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है. इमेजेस को आपने अच्छा करना चाहिए. अमेज़ॉन खुद भी गाइडलाइंस देता है और आपने अच्छे से फॉलो करो. उसमें आप लाइफ साइज इमेज डाल दो जिसमें एक इमेज यूज़ हो रही है, इंसान यूज़ कर रहे हैं. इमेज के डायमेंशंस दिखने चाहिए कंपैरिजन की में, कि हाथ के कंपैरिजन में या आप इंसान के लेंथ के कंपैरिजन में ऐसे इमेजेस का साइज़ दिखाइए. आपके स्पेसिफिकेशंस जो है वो दिखा दीजिए इमेजेस के. तो ये पूरा प्रोडक्ट लिस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. फिर आते हैं रिव्यूज़. अगर आपके प्रोडक्ट पे 0 रिव्यूज़ हैं तो बहुत धीरे धीरे सेल होती है. जैसे ही एक अच्छा रिव्यू आ जाता है, बस एक अच्छा रिव्यू होता है, आपको सडनली दिखता है कि सेल्स बढ़ जाती है. और ये आपको हर 10 के मल्टीपल में दिखेगा. 10 रिव्यूज़ आ जाएंगे तो और बढ़ेगा, 100 रिव्यूज़ आ जाएंगे तो और अच्छा दिखेगा, 1000 पे और अच्छा दिखेगा, 10,000 पे और अच्छा दिखता है, 1 लाख पे भी और अच्छा दिखता है. मतलब हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका 1 लाख रिव्यूज़ से भी ज़्यादा है और सेल्स वेलोसिटी बहुत अच्छी बढ़ती है. तो रिव्यूज़ ले आइए. वाइन रिव्यू प्रोग्राम होता है अमेज़ॉन का, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. फेक रिव्यू से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, स्पेशली इंडिया के बाहर. इंडिया में फिर भी थोड़ा चल जाएगा, लेकिन मैं आपकी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन
इंडिया के बाहर फेक रिव्यूज़ का कोई एडवांटेज नहीं है, आपका प्रोडक्ट ही डीलिस्ट हो जाएगा, आपका सेलर अकाउंट भी बैन हो जाएगा। तो इसलिए आप जेन्युइन रिव्यूज़ पे फोकस करो, पुश करते रहो। थर्ड फैक्टर इज एड्स। एड्स से प्रोडक्ट को पुश करो, जो दिखता है वो बिकता है, तो उस पर बहुत अच्छे से फोकस करो। एड्स पे शुरुआत में एड्स एक्सपेंसिव जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके रिव्यूज़ बढ़ते हैं, सेल्स वेलोसिटी बढ़ती है, आपके एड्स इफेक्टिव होने लगते हैं। शुरुआत में अगर आपके पास में 50 प्रोडक्ट्स है, 50 प्रोडक्ट्स पे एड्स से फोकस मत करो, 5 अच्छे प्रोडक्ट्स को चूज करो, उन पे पंप करो पैसे, जिस पे रिव्यू आएगा उस पे और ज़्यादा पंप करो, जिस पे बिक रहा है उसको पंप करो, जो प्रॉफिटेबली बिक रहा है उसको और ज़्यादा पंप करो। तो यही तरीका है, शुरुआत में कठिन होता है ये साइकिल को घुमाना। और फाइनल लास्ट चीज़ है कि आपको आपके प्रमोशंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अमेज़ॉन के बहुत सारे प्रमोशंस होते हैं और बाकी प्लेटफॉर्म्स के भी होते हैं। आपने प्रमोशंस से विजिबिलिटी को और बढ़ाना है। टैग्स ले लीजिए, आप डिस्काउंट टैग ले लीजिए, स्लैश प्राइसिंग का बेनिफिट ले लीजिए। फिर प्राइम डे पे आप बहुत अच्छा ये करो, यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि प्राइम डे सेट्स द पेस फॉर द फेस्टिवल सीजन विच इज़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिवाली भी आपकी अच्छी होगी अगर आपका इंडिया में अगर प्राइम डे अच्छा है, और यूएस में आपकी क्रिसमस भी अच्छी होगी अगर आपका प्राइम डे आपने यूएस में अच्छा किया है, और सेम चीज़ बाकी कंट्रीज़ में भी होती है। तो प्राइम डे आपको यूटिलाइज करना है, वैसे ही BFCA में यूटिलाइज करना है, और पूरे फेस्टिवल सीजन में आपने अच्छे प्रमोशंस करने हैं और डील्स रन करने हैं, कूपन्स रन करने हैं। तो ये 4 स्ट्रैटेजीज मैं कहूँगा कि विजिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Nice, nice, thank you. Very useful. Turning back to you, Sumedh, what are some of the risks of, so let's say common mindset is पहले business कर लेते हैं, tax और compliance और ये सब delay करेंगे, let's see, we'll figure it out. Okay, what are the risks of doing such a adventure, if I have to say that? 3 बड़े रिस्क देखे हमने। एक सबसे बड़ा रिस्क है कि आपका ब्रांड हाईजैक हो जाएगा, रातों रात आपको नहीं पता लगेगा, पर सुमेध नाम का अकाउंट किसी और भाई बंधु ने गाज़ियाबाद से खोल दिया और सुमेध नाम के प्रोडक्ट बेच रहा है वो, और सुमेध को अता पता भी नहीं है। अगले दिन सुबह होएगी, मैं अकाउंट लॉगिन करूंगा, मेरी लिस्टिंग पर टॉप सेलर कोई और बन चुका है, बाय बटन किसी और के पास जा चुका है। मैं हड़बड़ाहट में अमेज़ॉन पीयूष को फ़ोन करूंगा, यार ऐसा हो गया मेरा। वो बोलेगा आपने ट्रेडमार्क क्यों नहीं कराया, ब्रांड स्टोर क्यों नहीं किया, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लगवाया, उसका बगैर तो ये मिल ही नहीं सकता आपको। और जो दूसरा शातिर आदमी गाज़ियाबाद से, उसने ये सब कुछ कर लिया होगा, मेरे नाम का ट्रेडमार्क ले लिया, मेरे नाम का ट्रांसपेरेंसी कोड भी जनरेट करवा लिया, अब उस लिस्टिंग पे मैं ही नहीं, मेरी लिस्टिंग पे मैं ही नहीं जा पाऊंगा, कुछ भी कर लूँ मैं। तो ऐसा कई बार हुआ है, साल में 20, 25, 30 केस बहुत आराम से आते हैं। दूसरी इसका वेरिएशन है कॉपीराइट को लेकर। बहुत रेलेवेंट केस चल रहा है आजकल, 2 केस बहुत रेलेवेंट चल रहे हैं। एक है कैरल कैवलिस का और एक है फ्रीडा कालो का। ये दोनों कोई महात्मा गांधी लेवल के लोग थे, जिनकी इमेज लोग कॉपी करके अपने बैग पे या नोटबुक पे छाप के सेल करते थे। तो जिनके पास इसका कॉपीराइट था, उन्होंने केस फाइल किया, तकरीबन 300-400 लोगों का नाम है उसमें। चाइना के बहुत लोग हैं, इंडिया के बहुत लोग हैं, जयपुर के, उदयपुर के भी हमारे कई सारे सेलर्स हैं जिनका नाम आ गया इसमें। गलती उनसे ये हुई, उन्होंने चेक नहीं किया प्रोडक्ट बनाने और सेल करने से पहले कि क्या ये इमेज या क्या ये डिज़ाइन प्रोटेक्टेड तो नहीं है, किसी से हमें परमिशन तो नहीं लेनी पड़ेगी। अब नुकसान उसका क्या हो रहा है, जितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है FBA में, वो इन्वेंट्री गई, जितना पैसा जनरेट किया था सेल करके वो पैसा गया, प्लस कोर्ट केस फाइल हो चुका है, बिटवीन $25,000 to $50,000 का कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सबको अलग अलग ऑर्डर आया डिपेंडिंग ऑन सबकी कितनी सेल थी। तो अब उनको जुर्माना अलग से अपनी जेब से देना पड़ रहा है अकाउंट रीइंस्टेट करवाने के लिए। अमेज़ॉन अकाउंट कोर्ट ऑर्डर की वजह से बंद हो गया। सो ये रहता है ब्रांड हाईजैकिंग और मिसयूज ऑफ समवन एल्सेस ब्रांड के, ये सबसे बड़े 2 रिस्क हैं। दूसरा रिस्क आता है डीएक्टिवेशन ऑफ योर अकाउंट। अगर आपके पास VAT नंबर नहीं है, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ मार्केट प्लेस में अमेज़ॉन आपको लेवरेज दे देता है कि यार फर्स्ट 90 डेज़ या फर्स्ट 120 डेज़ आप सेल करिए, उसके दौरान ले आइए। पर आप अगर अप्लाई ही नहीं करा आपने वैट और आपका सेल चालू है, 90 दिन कंप्लीट हो गए, उसके बाद अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, वो खुल नहीं पाएगा अकाउंट विदाउट VAT नंबर। थर्ड प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन को लेकर। अगर आपके पास प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन नहीं है, लिस्टिंग कभी भी डाउन हो सकती है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप सेल कर पा रहे हैं, आपको उम्मीद ऐसा जागेगी कि यार इसमें कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं लग रही, किसी ने बोला नहीं, बताया नहीं, मैं फ्री में सेल कर सकता हूँ।
पर जब किसी की नज़र पड़ेगी कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से अमेज़ॉन से, या किसी ने कंप्लेंट फाइल करी किसी कंज्यूमर ने, तो लिस्टिंग डाउन होएगी, अकाउंट भी सस्पेंड होगा, उसको वापस रीइंस्टेट करना में मेहनत दोबारा लगेगी, रैंकिंग लॉस हो जाएगा, रिव्यूज़ फीडबैक नेगेटिव आ सकते हैं। ये 3 बड़े रिस्क हमने देखे हैं, ट्रेडमार्क को लेकर, कॉपीराइट्स को लेकर, टैक्सेशन को लेकर और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन को लेकर। तीनों अलग अलग स्टेजेस पे हैं। एक अकाउंट लॉन्च करने से पहला है, एक सेलिंग के ड्यूरिंग है, एक सेलिंग होने के बाद, पैसा पेमेंट बैंक में आने के बाद। तीनों स्टेजेस पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्विक फॉलो अप, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन लगेगा या नहीं, पता कैसे करें? अमेज़ॉन के अंदर इंटरनल टूल है, Okay. अदरवाइज आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, वी कैन टेल यू किस कैटेगरी में क्या लगना है। अदरवाइज चैट जीपीटी बहुत फ्री में भी अवेलेबल है, पेड टूल भी अवेलेबल है, गूगल पे आप रिसर्च कर सकते हैं। बट एक थंब रूल ऐसा है कि अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया में सर्टिफिकेशन लग रहा है तो चांसेस आर कि उसका बाहर भी लगेगा और ज़रूरत Overseas आएगी भी उसकी। Got it. Okay. Thank you. Very helpful. Piyush, coming back to you. So we discussed buyers, sellers को क्या करना चाहिए. But what are the global trends? What are the consumers wanting? What are, I mean, especially global consumers. What are their expectations from our products or our sellers? I think that's a good point because ultimately जो डिमांड है उसी से सब धंधा बनेगा. सो आई थिंक ओवरऑल ई कॉमर्स जो है वो ओवरऑल ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, नॉट जस्ट एक्सपोर्ट्स, तो ई कॉमर्स ग्लोबली आई थिंक 11% प्लस रेट पे ग्रो कर रहा है, राइट. सो द नंबर ऑफ यूजर्स ग्लोबली हु आर शॉपिंग ऑनलाइन स्पेशली आफ्टर कोविड वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है एंड स्टिल इट इज़ ग्रोइंग एट समवेयर अराउंड 11 to 12%. तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स. द अदर इज़ कि अभी बिकॉज ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन ने जो किया है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ कि आपका सेम डे नेक्स्ट डे डिलीवरी हो सकता है, और अभी इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स के आने के बाद आपका 15 days डिलीवरी. सो स्पीड इज़ समथिंग विच इज़ मैटरिंग अ लॉट टू कंज्यूमर्स. Okay. और अभी उसका स्पीड का डिमांड और बढ़ता जा रहा है, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी में हो आप. So that's the second point. And thirdly, I think like Amazon का अभी भी जो majority share है वो North America है. So उसमें what we need to understand, and I think in the previous session they gave an example, Anshuman gave an example of sari, right? So similarly, if you look at अभी जैसे बेडशीट का अगर हम बात करते हैं, इंडिया में हम लोग जो इंडिया का बेडशीट्स का रिक्वायरमेंट बहुत है, बट देन अगर आप सोचो कि फूल पत्ती वाला जो बेडशीट है वो वहाँ पे लोग बेड पे बिछाएंगे, दैट डजंट हैपन. वो या तो जैसे वॉल हैंगिंग के लिए यूज़ करेंगे, या लाइक व्हाट किरण वाज सेइंग कि जो कैलिफोर्निया डिज़ाइन डेन है, सो दे आर सेलिंग प्लेन बेडशीट्स कि अलग अलग कलर्स में, ग्रेज में या पेस्टल शेड्स में, जो वहाँ पे चाहिए रहता है. एंड देन उसमें आपको सेट कैसे बनाना है, फ्लैट शीट हो गया, टॉप शीट हो गया और ऊपर डुवे कवर्स हो गए. तो वो ट्रेंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कस्टमर है उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप कैसे फाइन ट्यून करो. आपका मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी वही रहेगा, बट आपको डिज़ाइन किस तरह से चेंज करना है, या उसका कितना थ्रेड का कॉटन होना चाहिए जो यूएस में कस्टमर्स को चाहिए, किस प्राइस पॉइंट पे चाहिए. सो आई थिंक दीज आर द 3-4 ब्रॉड ट्रेंड्स, बट ओवरऑल इफ यू सी द डिमांड फॉर ऑनलाइन परचेज इज इंक्रीजिंग ग्लोबली. इंडिया में भी वही हो रहा है. एंड देन स्पीड इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड थर्ड इज़ योर डिज़ाइन एस्पेक्ट कि आप उसको कैसे डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइंस कैसे डिस्कवर करते हो. एंड अभी क्या होता है कि लॉट ऑफ थिंग्स बिकम वायरल ओवरनाइट. जैसे अभी वो लाबलू करके एक देयर सम टॉय दैट हैज गॉन वायरल, राइट. तो उसको कैसे आप कैप्चर करो कि हाँ ये प्रोडक्ट अभी वायरल हो रहा है या फिर ये प्रोडक्ट डिमांड ग्रो होगा. एंड उसके लिए वी हैव अ लॉट ऑफ टूल्स ऑल्सो. एक तो वायरलिटी वाला एस्पेक्ट अगर हम छोड़ देते हैं तो जनरली आपको प्रीवियस 36 मंथ्स से लेके 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, लास्ट मंथ क्या ट्रेंड्स रहे हैं प्रोडक्ट में, सर्च कितना हो रहा है, सेल कितना हो रहा है, वो सब क्या कॉम्पोजिशन है. अभी जैसे कंज्यूमेबल्स में अगर हम देखें सप्लीमेंट्स इंडिया से काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है. सो व्हाट कॉम्पोजिशन ऑफ सप्लीमेंट्स इज डूइंग गुड. तो वो सब जो रिसर्च करके एंड देन हाउ आर यू एबल टू केटर टू दैट डिमांड, आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. Sure. And quick follow up on that, इसमें does seasonality play a role? I mean, and does Amazon help with that?
या आई थिंक सीजनैलिटी रहता ही है, डिपेंड्स कि आपका किस तरह का प्रोडक्ट है. बट अगर हम हम अमेजोन का देखें तो आई मीन विद ग्लोबल सेलिंग एंड विद ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप सिर्फ इंडिया के फेस्टिवल्स नहीं, जो बाहर के भी जो सारे थ्रू आउट द ईयर फेस्टिवल है उसमें भी आप बेसिकली अपना सेल इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. जैसे प्राइम डे हो गया, वो तो अमेजोन का एक इवेंट हो गया. देन यू हैव ब्लैक फ्राइडे सेल जो यूएस में होता है, इंडिपेंडेंस डे इज राइट, इंडिपेंडेंस डे. देन आपका क्रिसमस वाला जो पूरा Q4 है वो बहुत बड़ा एक सेल का पैटर्न है. तो सीजनैलिटी थोड़ा रहता है, बट अगेन इट्स नॉट बेस्ड ऑन कि इंडिया में क्या फेस्टिवल्स हैं. वो होगा कि आपका डेस्टिनेशन कंट्री में कौन सा फेस्टिवल्स है, सेल्स हैं, उसके बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. Makes sense, good one. Percy, coming back to you, छोटे exporters, I mean just turned kind of exporters, they have no warehouses abroad, shipping costs they want to keep in check, right? So what are some of the face model or flexibility they can go for while going for logistics? So Nilesh, a very relevant question. As Piyush said, Amazon does provide a send program within FBA program, and if they are selling on Amazon, they can take advantage of that. But on the other hand, as I said, when they are working with a logistics partner, can the logistics partner give them an array of products where transit time can be managed with costs and they balance on that? Or they can also choose a logistics partner who has got fulfillment facilities in specific countries where they can hold it in the logistics facility of the partner. The advantage they have over there is, as when they keep it with the logistics partner, they are neutral, they can sell it on multiple marketplaces and they can be selling it on their own D2C site and getting it shipped out from there. So there is a mixture they can do. There is no one formula which fits all. They will have to see the SKU or the number of SKUs. They can have a hybrid model where limited SKUs which are fast moving, they store it over there, whilst the long tail SKUs where the number of frequencies or order are lower, they do a merchant fulfilled from here to there with a transit time adjustment depending on what the customer is expecting. Makes sense, makes sense. That should help small exporters. Kiran, back to you. So I think Anshuman spoke a lot about brand building and stuff like that. What is the role of loyalty, for example? One of the example he gave was you can deploy influencers. What are some of the other strategies beyond just having an influencer? How do you promote your brand? How do you build brand loyalty overseas when you're sitting here? So I think the answer is, I'll connect both of them. So हमारा एक क्लाइंट है जो टिकटॉक पे यूएस में मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल इन्फ्लुएंसर है. सो जैसे किम कार्दाशियन इंस्टाग्राम पे है, ये पर्सन, एंड ही इज़ अ मेल इंडियन 65 ईयर ओल्ड प्लस पर्सन, बॉल्ड भी है. तो ये पर्सनालिटी इज़ द मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल इन्फ्लुएंसर ऑन टिकटॉक. ओके, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पावर क्या है आप इससे जान सकते हो. और वो टिकटॉक पे लार्जेस्ट सेलर भी है, तो वो एप्पल से ज़्यादा बेचते हैं, अमेजोन में भी बेचते हैं वो, और टिकटॉक यूएस में भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं. टिकटॉक की वजह से अमेजोन पे भी फ़ायदा होता है. बट लॉयल्टी कैसे आती है? इन्फ्लुएंसर करने से केवल लॉयल्टी नहीं आएगी. तो इनके पर्सनल बिहेवियर में मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ. हम 5 साल से काम कर रहे हैं. पहले कोई भी नेगेटिव रिव्यू आता तो पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों का, उसमें कमेंट आता कि ये नेगेटिव रिव्यू किसने डाला है, किस कॉम्पिटिटर ने डाला है, देखो ज़रा क्या हुआ है. ठीक है, 3 साल पहले पता नहीं क्या हुआ. उसके बाद से अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आता है तो तुरंत मैसेज जाता है अपने टीम मेंबर को कि चेक करो इस बैच में और क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, बाकी के प्रोडक्ट्स देखो, एक ऑर्डर करो जो ऑलरेडी ये बैच चला गया है उसमें से एक ऑर्डर करो और चेक करो कि क्या प्रॉब्लम है. तो ब्रांड लॉयल्टी आती है अच्छा प्रोडक्ट बनाने से. ठीक है,
और फिर उसके बाद में आपको अच्छा सर्विस देना है लोगों को, कंप्लेंट्स है उनको रिजॉल्व करना है। ब्रांड लॉयल्टी प्राइमरीली उससे आएगी। आप इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी साथ में कर सकते हो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन मेन चीज़ है आपका कस्टमर सर्विस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दैट क्रिएट्स ब्रांड लॉयल्टी, नथिंग बीट्स इट। Totally. I can correlate that at Brisbane. So, yeah, we have similar. One negative review comes and everyone's like, "Kya hua?" Okay, and then we suddenly start to see. Pehle dekhte, let's fix our house. Okay, whether we have a problem in house or not. That's a good insight. Piyush, coming back to you again. So, any success inspiring stories, right, which ground up to like mega sell kind of thing, which can inspire the newbies or the guys who are already on the platform? Sure. I think I didn't carry my notes on the numbers, but Minimalist एक brand है जो आप लोग ने सुना होगा। तो Minimalist ने they started their journey on e-commerce exports through Amazon Global Selling, and they मतलब उन लोगों ने I think US and सब कंट्रीज से स्टार्ट किया, एंड देन नाउ आई थिंक दे आर इन 5 to 6 कंट्रीज़ वो मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। एंड उनका जो ओवरऑल ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स का जो एक्सपोर्ट्स वाला जो साइड ऑफ बिजनेस है वो भी काफ़ी बड़ा हो गया अभी। एंड आई थिंक रिसेंटली आप लोगों ने सबने न्यूज़ में सुना होगा कि अभी HUL मिनिमलिस्ट को एक्वायर कर रहा है। तो दैट हैज़ बीन दैट इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। एंड एक जनासिया करके ब्रांड है, एंड मिनिमलिस्ट तो आई थिंक जयपुर से ही हैं। सो एंड देन सॉरी ओके नाइस। देन जनासिया करके ब्रांड है विच डज, सूरत का ब्रांड है, एंड दे डू एथनिक क्लोथ्स फॉर वुमेन। So they are also doing pretty well in overall उनका जो e-commerce का exports का business है। So I think these two are the ones. I mean there are a lot of other stories, and बहुत छोटे छोटे cities से भी हैं, मुरादाबाद से लेके आपका करूर, साउथ बेल्ट में और वेस्टर्न बेल्ट में, एवरीवेयर। तो ओवरऑल आई थिंक हमें भी बहुत अच्छा लगता है व्हेन वी सी ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स डूइंग ग्रेट, एंड लाइक व्हेन वी रेड द न्यूज़ अबाउट मिनिमलिस्ट, हमारे इंटरनल टीम में इट वाज लाइक समथिंग दैट वी डिड, इट वाज अ सक्सेस फॉर अस आल्सो। सो आई थिंक ओवरऑल दीज टू ब्रांड्स एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर्स which really make us feel that हम लोग कुछ सही कर रहे हैं, and there is lot of opportunity for lot of other brands with the right kind of guidance. Totally, yeah. Good to hear success stories. Sumit, back to you. So US, UA is very standard, I mean, in terms of exporting markets and all. But what are some of the regions where it gets complex, and what are your thoughts on this? What regions exporters should be wary of, or are opportunity areas? So, हमने देखा है सक्सेसफुल बिजनेस वहाँ पे यूजुअली बनता है जहाँ पे बैरियर टू एंट्री होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स का मतलब है सारे जनता वहाँ पे नहीं जाएगी माल सेल करने के लिए। तो यूरोपियन यूनियन एक ऐसा मार्केट है जो थोड़ा सा US से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, UK और यूरोपियन यूनियन दोनों। तो हमने यूरोपियन यूनियन में आई थिंक बहुत स्कोप है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ बहुत सारे बैरियर टू एंट्री है, कंप्लायंस को लेकर ही, शिपिंग को लेकर भी, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन को लेके, करेंसी कन्वर्जन वगैरह, काफ़ी हर चीज़ में ऑलमोस्ट लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। एक अदर बहुत अच्छी जोग्राफी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनती है, पर अभी मार्केट साइज़ उतनी बड़ी नहीं है, बट इन द फ्यूचर अच्छा बनेगा। आई थिंक GCC गल्फ़ कंट्री और UAE, वहाँ पे उनका ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो रहा है। ये दो मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। UK के साथ में FTA साइन हुआ अभी मई के महीने में, तो ड्यूटी रेट्स कपड़े पे, अपने अपैरल पे 12% ड्यूटी लग जाता है, जो जयपुर का मेन प्रोडक्ट है। वो शायद अब कम हो जाएगा, प्रॉब्ली 0% पे आ जाएगा। तो 12% का आपके कॉस्ट में सेविंग बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। US में भी आई थिंक FTA ऑलरेडी साइंड है, बट आफ्टर चाइना वाला इशू अभी भी ड्यूटी लगती है कपड़े के ऊपर, अभी भी लग रही है, बल्कि बढ़ भी गई है काफ़ी प्रोडक्ट पे। लेदर के प्रोडक्ट में, कागज़ के प्रोडक्ट में, लेदर के प्रोडक्ट में 10% ड्यूटी लग रही है, और अगर मेटल है उसके अंदर तो 50% ड्यूटी लग जाती है। सो इन कंट्रीज़ में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि छोटा सेलर जो कॉर्नर्स कट करते हैं वो इन चीज़ों के आसपास नहीं मंडराएंगे, तो बड़े सेलर के पास अपॉर्चुनिटी है इसको मोनेटाइज करने का। US, यूरोपियन यूनियन एंड इन द फ्यूचर GCC।
So Nilesh, much in this ecosystem. That's good to hear. Okay, before we close, just one line advice. I'll come quick fire, rapid round to you, each one of you. Okay, and what's the one thing that the sellers must absolutely get right before they begin? I think the confidence on the product and then building, investing in One the line. brand. Sorry? One line. Yeah, that's it. Like having the confidence and investing in the brand, I think is the key. Perfect. Thank you, Kiran. जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा भेज दिया तो माल पड़ा रहेगा, कम भेज दिया तो स्टॉक आउट हो गया और फिर उसके बाद 3 महीने बाद पहुंचेगा सामान, फ़ायदा नहीं है. तो इन्वेंट्री, गेट द इन्वेंट्री राइट फॉर द फर्स्ट लॉन्च. Thanks. यूनिट इकोनॉमिक्स, कंप्लायंसेस एंड बजटिंग मेरे हिसाब से. commit what you can deliver and think big. Good one. Think big. That's the message. Okay, thank you very much, panelists. Very insightful from my perspective. I think I gained a lot of knowledge as part of this session. And I'll just open up for 5 minutes. 1 or 2 questions we can take if somebody has a question. In audience, yeah, please. Sumit, like nowadays war is going on, so बहुत सारे जो है sanctioned countries भी हो रही है, तो any specific license should be required to deal with that country? उसमें जैसे कि मैं नीलेश जी आपसे भी पूछना चाहूँगा, what role BRICS पे will pay, like if कुछ payment वगैरह आ रहे और पहले चल रहा था, तो how we can deal with this? Even this same questions goes to Percy, like how we can deal with this situation? सो सैंक्शन कंट्रीज के साथ डील ना करें तो बेटर है. अगर उन सैंक्शन कंट्रीज में आप पाकिस्तान पूछ रहे हैं, बिल्कुल डील मत करिए. मैं पर्सनली नहीं चाहूँगा आप पाकिस्तान के साथ डील करें, बट अगर अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, you are Indian government has consulates over there, so there is economic trade between the two countries, but because of sanctions and India has a FTA with US, because of that dual nature of the relationship, problem आ सकता है. I would recommend you will need to be in compliance with the payment provider and the shipping company also. Like पाकिस्तान तो नहीं, बट बहुत सी यूरोपियन कंट्री, और जैसे कि मेरा जूम पे वी वर सेलिंग ऑन, तो पहले पेमेंट पेयोनियर के थ्रू आ रहा था, सडनली उनका कुछ सैंक्शन की वजह से इशू हुआ. तो मुझे तो क्वेश्चन नीलेश जी की तरफ से, मतलब पहले इसका आंसर पता है, दे हेल्प मी आउट टू थ्रू दिस, बट अब ये वॉर जैसा चल रहा है तो हर एक दूसरी कंट्री के ऊपर सैंक्शन एक दूसरे के देता है, तो उस फेज़ में एनी स्पेसिफिक लाइसेंस हम लोग ले सकते हैं, या ई कॉमर्स वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहले कर रहे थे, अमेजोन यूरोपियन वहाँ पर भी है, तो उसमें कैसे डील करें? वो जिस मार्केट प्लेस का आपने नाम लिया, उसका जो प्रॉब्लम आया है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, स्पेसिफिकली उसको ब्रिस्क पे ने सॉल्व किया है. अभी इनकी टीम से मैं पहले बाहर यही बात कर रहा था कि वो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का प्रॉब्लम हुआ और इन्होंने ब्रिस्क पे ने एकदम क्लीन चिट दे के सिंप्लीफाई कर दिया उसको, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस प्रॉब्लम का. आई थिंक ब्रिस्क पे इज कंप्लायंट विद the regulations, so that is doable. और कोई कंट्री का I'll be happy to discuss with you one to one, मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ, एक्सेप्ट पाकिस्तान. नहीं, बट जैसे इसमें बहुत सी ऐसी कंट्री, जैसे कि मैं जैसे पेरिसेबल गुड है, जैसे ईरान से या अफगानिस्तान से हम लोग बार्टर में करते हैं, मतलब जैसे हम उनसे डेट्स मंगा लिया, पोमोग्रेनेट, हमने यहाँ से जो है नारियल हो गया, जो कोकोनट हो गया, या तो वैसे चल रहा है. बट अभी पेमेंट ट्रांजैक्शन का आ जाता है, या इसमें बहुत सी चीज़ आ जाती है, उसमें सर्टिफिकेशन की वजह से कहीं अगर काम अटक रहा है तो वी कैन गो अहेड विद दैट ऑल्सो. तो अगर आप बार्टर कर रहे हैं तो फिर वो ट्रेड नहीं है, वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है. या तो वो आपका फैमिली फ्रेंड है, कोई गिफ्ट वगैरह जा रहे हैं तो अलग बात है, सैंपल जा रहे हैं अलग बात है, बट इफ़ यू आर डूइंग बार्टर एज अ ऑल्टरनेटिव टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन, थोड़ा लीगैलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है आपको. आप उसको कमर्शियल ट्रेड में कन्वर्ट करें, बेटर रहेगा, सेफ रहेगा. आपका रेमिटेंस जो बाहर से आ रहा है वो भी इजीली सेट ऑफ हो जाएगा इंडिया में, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकता है. बार्टर इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक. तो आई वुड रेकमेंड उसको ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. ऑलराइट, वी विल कनेक्ट. लॉजिस्टिक का कैसे? So if you are dealing with a sanctioned country,
When I say sanctioned, I'm not referring to Pakistan or Afghanistan. They are not sanctioned countries. To me, a sanctioned country is a country where there is a trade sanction levied by Big Brother, USA, or somebody in Europe, and they say anybody dealing with that country will be blacklisted. These kind of sanctions, when they happen, like Iran, Russia, Sudan, there are a few more countries in Africa, then even the logistics carrier would not carry over there because they are not allowed to operate. See, moment we as a global company start working in those countries, or a bank starts working in those countries, we will not be able to legally work in some of the developed countries world. So today if I have an operation, let's say in Iran, not because of the war, I'm saying for the last 10 years, they are a sanctioned country. If I have in Iran, my banker, if he is a global banker, a multinational, will refuse to work with me. Okay, Indian bankers will work because India has a rupee transaction arrangement with Iran, so ho jata hai. But if any other banker is there, he has to get his money through SWIFT, if I'm not mistaken, which comes through US, and US ने sanction किया, वो हाथ नहीं लगाएगा. So if you want to work with a sanctioned country, first understand who has levied the sanction, and if it's a sanction levied by a third developed country, then you'll have to talk to your logistics partner before you do it. We do trade with certain sanctioned countries, but then the compliance requirement, the audit requirement, it takes 3 to 4 days to get it cleared before we ship the product. एक क्वेश्चन था पीयूष जी से, जैसे कि अमेज़ॉन ग्लोबल के लिए असेंशियल ऑयल है, अतर ऑयल्स वगैरह है, वो अभी जैसे कि एफबीए में रख के हम लोग कर सकते हैं कि स्पेसिफिक उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है? स्पेसिफिकली तो मैं एकदम नहीं बता पाऊंगा अभी, आई हैव टू चेक, बट आई थिंक वो जैसे आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो उसमें आपको एलिजिबिलिटी दिखाता है कि एफबीए के लिए एलिजिबल है कि नहीं. And before listing also, I believe maybe you guys are better. हाँ, so you can also see research के time पे भी आपको दिख जाएगा कि वो product का FBA में और कोई products हैं या नहीं जो FBA कर रहे हैं. तो वो भी एक तरीका है आपको देखने के लिए कि सिमिलर आपका जो प्रोडक्ट है वो फुलफिल बाय अमेजोन अगर है तो दैट मीन्स आप रख सकते हैं. बट आई थिंक बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो देयर सेइंग कि रख सकते हैं आप. कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर्टिफिकेशन इजीली हो जाती है अत्तर की, नॉन अल्कोहलिक की. कुछ कंट्रीज हैं जहां अल्कोहल नहीं अलाउड, वहां पे नहीं कर वहां पे आप परफ्यूम नहीं कर पाओगे, अत्तर फिर भी कर पाओगे. बट इट इज़ डूएबल, ऑलरेडी सेल हो रहा है. ऑल राइट.